Okay, so we are going to start with next module today, and next module has two simple chapters. उसमें से पहला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. So we started our journey with electrostatics. Electrostatics में charges were at rest. We were talking only about electric field, force between charges, force on one charge due to all other charges, electric dipole which is at rest, so on and so forth. Electric dipole in external electric field, potential energy stored in that, and so on and so forth. Then, when charges start moving, two things happen. One, you have current, then you talk about current electricity. जो last chapter में हमने देखा. Other thing that happens is when you have moving charges, they start generating magnetic field as well, right? So you have moving charges, matlab you have electric current, and electric current generates magnetic field, hence it is called as magnetic effect of electric current. Now, the first question that should come into our mind is, if I have a wire of some shape, random shape, and if this wire has current I. So since this wire has current I, it means it will generate magnetic field in its surrounding region, right? And if I want to find out magnetic field, let us say at some point P, so what is the value of magnetic field intensity to be precise? What is magnetic field intensity? जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की, जैसे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात की, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या सिंपली मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज गिवन बाय व्हाट. तो सेम प्रॉब्लम है यहाँ पे. जब हम बोलते हैं हमको एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो अगर पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज Q से जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यू जस्ट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एंड यू से दिस इज द डिस्टेंस r दैट वी विल बी यूजिंग. अब जब हमको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर निकालना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड अराइज टू योर माइंड, डिस्टेंस कहां से मेजर करें? दैट इज बेसिक प्रॉब्लम हियर. तो हम बोलते हैं कि लेट अस डिवाइड दिस वायर इनटू स्मॉल स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl. तो हमने पूरी वायर को छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट से डिवाइड कर दिया, राइट? अब अभी भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ. देन वी से चलो ठीक है, डिस्टेंस ही तो मेजर करना है, एक लेंथ एलिमेंट कोई भी ले लेंगे, उसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे up to that point where you want to find out magnetic field, sorry. So the distance is always measured from the center of a length element, and length element has got direction, क्योंकि length element का direction है ये, this is dl bar, और ये जो distance है ये r है from that point to that, from the center of the length element to the point P. इसको भी वेक्टर बना देता हूं मैं r bar. तो dl bar और r बार में जो एंगल है दैट इज लेट अस से थीटा. तो हमने क्या किया, जिस वायर में से करंट पास हो रहा था उस पूरी वायर को हमने छोटे छोटे इक्वल लेंथ एलिमेंट में डिवाइड कर दिया है, एंड कोई भी एक लेंथ एलिमेंट चूज किया, उसके सेंटर से जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमको चाहिए वो एक लाइन ड्रॉ की, उस लाइन को वेक्टर बना दिया, उसको बोल दिया आर वेक्टर, और जो लेंथ एलिमेंट था डीएल उसको भी वेक्टर बना रहे हैं हम लोग, उसको बोल रहे हैं डीएल वेक्टर. तो एंगल बिटवीन डीएल बार एंड आर बार इज थीटा, बट लकीली करंट का डायरेक्शन भी यही है. तो डीएल बार एंड करंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन.
मतलब theta you can also say that is the angle between current and r bar. Then, according to Biot-Savart's law, this law tells you that intensity of magnetic field at point P is proportional to length of the element. Well, I should write dB क्योंकि मैं magnetic field due to small length element की बात कर रहा हूँ, इसलिए dB. It is also proportional to current. जितना ज़्यादा current उतना ज़्यादा magnetic field. It is also proportional to sine of angle between length element and that vector r. It is inversely proportional to 1 upon distance square. Right? So magnetic field due to this small length element is proportional to I dl sine theta by r square. When you remove the proportionality sign, you have some constant k I dl sine theta by r square. The value of k, it is exactly similar to what you have learned in electrostatics. K is 1 upon 4 pi epsilon 0 if surrounding medium is vacuum or air, and here k is mu 0 by 4 pi. There epsilon 0 was permittivity of free space, here mu 0 is permeability of free space. Okay, I dl sine theta by r square. This is Biot-Savart law, which you can use to find out magnetic field at a given point. Right? Good. Of course, it will depend on that angle theta. You can also write this in terms of vector. आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो. देखो I और dl दोनों का डायरेक्शन सेम है. ओके, तो मैं I को या dl को वेक्टर बना सकता हूँ दोनों में से एक को. नॉर्मली dl लेंथ एलिमेंट को वेक्टर बनाते हैं. व्हाट वी विल डू इज हम यहाँ पे सिर्फ r एडजस्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय r. तो r क्यूब आ गया. अब आई राइट db बार mu 0 by 4 pi. Now I and dl bar they are in the same direction. तो I वैसे भी I स्केलर है. I को dl के साथ लिखो, I को r के साथ लिखो, doesn't matter. क्रॉस r बार. क्यों क्रॉस r बार? क्योंकि r dl sin theta will give you a vector. याद है क्या, ये क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन है वो. a bar cross b bar is ab sin theta some direction. तो r dl sin theta is dl bar cross r bar upon r cube. करेक्ट. तो ये वेक्टर फॉर्म आ गया. देखो लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर, राइट हैंड साइड पे भी वेक्टर. करेक्ट. so that is vector form of Biot-Savart law. What about direction? हमने डायरेक्शन की बात ही नहीं की. डायरेक्शन तो बहुत इजी है. It is given by right hand thumb rule. Consider this is a wire which is conducting current and the current is going from bottom to top. Hold this current carrying conductor in your right hand such that thumb is outstretched in the direction of current. Thumb current के direction में होना चाहिए. Then curl your fingers around this wire. If thumb is giving you direction of current, then the curled fingers give you direction of magnetic field. अगर ये समझा तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे. नहीं समझा तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है. If thumb gives you direction of current, then curled fingers give direction of magnetic field. If curled finger gives you direction of current,
then thumb gives you direction of magnetic field. ये पता होना चाहिए. Good. So now we should know a formula. Let us say I have this wire which is carrying a current I. This is a straight wire, and I want to find out at some point P, which is at a distance of A, what is the magnetic field. So I will directly write down formula now, but later in some of the theoretical part or numerical we will find this value. तो ये आता है B equal to mu 0 I 2 pi by A. कैसे आता है हम देखेंगे, but I do not prefer to write it in this form. I always prefer to write a 4 here and 2 here, क्योंकि mu 0 by 4 pi की वैल्यू 10 power minus 7 पता होती है. तो this is magnetic field at a distance A away from a wire carrying a current I. Mu 0 by 4 pi 2 I by A. Right? Correct. Now you should remember this formula, क्योंकि आगे जाके अभी ये स्ट्रेट वायर था, आगे मैं एक रिंग लूंगा, उस रिंग में से करंट सर्कुलेट हो रहा है. ये याद रहेगा तो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद रहेगा. मैं अभी ट्रिक बता देता हूँ आपको. वायर स्ट्रेट है ना, वायर स्ट्रेट है और कुछ भी नहीं है, वायर स्ट्रेट है, करंट आई है, इसमें पाई आएगा, इसमें डिनोमिनेटर में पाई आने वाला है. म्यू 0 by 2 पाई आई बाई ए. सर्कुलर रिंग होगी तो पाई गायब कर देना है वहां से. म्यू 0 आई बाई 2 ए, सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग रिंग. सेंटर पे करंट कैरिंग रिंग है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो म्यू 0 आई बाई 2 ए. वहां पे ए की जगह पे आर, रेडियस ऑफ रिंग. राइट. सो दिस इज हाउ यू शुड रिमेंबर. वो हम देखेंगे, वी विल सी दैट. वेल, बाय द वे, अब वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन. वैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हो, वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं. तो बी इज मैग्नेटिक इंडक्शन. बेसिकली magnetic induction at a point on the axis of a current carrying ring, current carrying circular coil. So I will not go into detailed derivation of this. I'll just tell you what is required. क्या करना है मैं उतना ही बताऊंगा. अगर हम लोग डिराइव करने बैठे तो विल लूज अ लॉट ऑफ टाइम. तो वी हैव दिस सिनेरियो. एक करंट कैरिंग कॉइल है, राइट. इसमें से करंट पास हो रहा है. लेट अस टेक एंटी क्लॉकवाइज करंट. सॉरी. नाउ ये उसका एक्सिस है. एक्सिस इज एनी लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. कॉइल, उसके सेंटर से जो लाइन पास होगा और वो कॉइल को परपेंडिकुलर, दैट इज एक्सिस. अब इस एक्सिस पे देयर इज अ पॉइंट, देयर इज अ पॉइंट P. लेट्स से हियर. मुझे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू द करंट I थ्रू दिस कॉइल. राइट. तो एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक लेंथ एलिमेंट लेंगे, फिर पहले इस लेंथ एलिमेंट का P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो देखेंगे. तो मैं मान लेता हूं दैट लेट्स से this distance from the center of element to that point P, let us say is R. और क्योंकि मैंने एक्सिस को
x एक्सिस पे रखा है तो ये x, देन दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, देन ये जो डिस्टेंस है ये है रेडियस ऑफ सर्कल। अभी आपके ऊपर है, आपको जैसा नोटेशन यूज करना होगा, यू आर फ्री टू। मैं इसको a बोलता हूं, ओके। आई डोंट केयर फॉर व्हाट बुक्स यूज, बिकॉज मेरे लिए तो सेंटर ऑफ लेंथ एलिमेंट से जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है मैं उसको r, बाय डिफॉल्ट मैं r रखता हूं उसको, दिस इज माय चॉइस। गुड, देन यू नो यू हैव टू इमेजिन नाउ, ये जो हमने बायोट सावर्ट लॉ लिखा था इसमें थीटा क्या था? इसमें थीटा था एंगल बिटवीन dl बार एंड r बार। अब ये मेरे पास रिंग है, मैंने ये ले लिया dl, पॉइंट है यहाँ पे एट द एक्सिस, तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया r। व्हाट इज द एंगल बिटवीन dl बार एंड r बार? 90 डिग्री। गुड, 90 डिग्री एंगल है, मतलब साइन 90 1 होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल से इज, I'm just keeping the notations at par with your textbook. So first of all, theta is 90, which is the angle between dl bar and r bar. Then, as you know, ये जो हम dl bar लिया है हमने, पहले हम उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर हम बोलेंगे कि ये पूरा सर्कुलर लूप dl bar dl bar dl bar dl bar से बना हुआ है, मतलब टोटल 2 पाई a देगा कंट्रीब्यूशन, राइट? वो बाद में देखेंगे, बट फर्स्ट थिंग इज ये जो dl बार, मतलब ये जो dl बार मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, dl लेंथ एलिमेंट लिया हुआ है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसका डायरेक्शन पता होना जरूरी है। सो थिंग इज यू नीड टू इमेजिन, यू नीड टू इमेजिन ये है आपका dl बार, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ dl, राइट? करंट का डायरेक्शन भी यही है, करेक्ट? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे आया था? करंट, thumb rule, current is if the current is along the thumb, magnetic field is along finger. Similarly सोचो अभी कहां जाएगा मैग्नेटिक फील्ड? टू थिंक अपवर्ड, एक्सीलेंट, इमेजिन तो करना पड़ेगा आपको। सो यू नीड टू इमेजिन दिस, दैट magnetic field is going somewhere here. You need to understand this. तो ये डायरेक्शन आप थोड़ा सा अच्छे से इमेजिन करो, somewhere here, right? You need to understand. नहीं समझा तो फिर गए। तो now we will be using an important property of vectors. By the way, आपको भी पता है वो property. You know, vector has direction and magnitude. वेक्टर चेंज कब होगा? जब मैं डायरेक्शन चेंज करूंगा या जब मैं मैग्नीट्यूड चेंज करूंगा। अब मैं अगर इस वेक्टर को पैरेलली मूव कर रहा हूं, ना मैं मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हूं ना मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, तो एट पॉइंट P दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। गुड, for the time being I am just changing little bit of its magnitude because I want to show component of this. तो थोड़ा सा मैं फिलहाल इसको for the time being, good, right? तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। नाउ what we can do is, if I call this angle as alpha,
and if I draw a line over here like something like this, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये एंगल को मैं बोलूंगा अल्फा, थीटा नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा अदरवाइज। दिस एंगल वाज अल्फा। अगर ये अल्फा है तो ये एंगल कितना है, 90 माइनस अल्फा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्मली इट इज एक्चुअली नॉर्मल, बेसिकली वो मैं दिखा नहीं पाया लेकिन इट्स ओके, दैट्स नॉर्मल, सो दैट इज नॉर्मल बेसिकली। ओके एनीवेज, तो ये एंगल कितना आएगा, अल्फा, राइट, गुड। तो यू हैव दीज टू एंगल्स एज अल्फा अल्फा। ये था आपका लेटर से पी आर वर्स मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट यहां पे आएगा, दिस इज विच कंपोनेंट, बी कॉस अल्फा, एक कंपोनेंट यहां आएगा बी साइन अल्फा, साइन अल्फा। ओके, थोड़ा ट्रिकी है तो समझ लेना, राइट। ये किसकी वजह से, जो ए पॉइंट पर लेंथ एलिमेंट लिया है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था उसके दो कंपोनेंट्स हैं। लेकिन क्योंकि ये सर्कुलर कॉइल है तो सर्कुलर कॉइल में डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब बी पॉइंट पे भी एक लेंथ एलिमेंट हम लोग ले सकते हैं, एंड द सेम स्टोरी विल रिपीट। वापस से आप बोलोगे ड्यू टू दिस लेंथ एलिमेंट you have magnetic field at point P. Magnetic field at point P is here in this direction. Same argument, right? फिर हम लोग बोलेंगे with same argument कि ये एंगल जो है ये होगा अल्फा, ये कंपोनेंट होगा आपका b cos अल्फा, यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा b sin अल्फा। क्लियर? So what do we notice? B cos alpha, they are equal in magnitude and opposite in direction, correct? So they will cancel out, by the way, क्योंकि मैंने स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिए है तो dB dB बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। यहाँ तक क्लियर है? ये समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। सर्कुलर रिंग के सिर्फ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे मैंने छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट ले लिए, लेंथ एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस देख रहे हैं हम लोग, these are the magnetic fields, horizontal components add, vertical components equal and opposite cancel each other, so total magnetic induction, total due to diametrically opposite point will be equal to 2 times of ये d था, ये भी d था, 2 times of dB sin alpha। क्लियर यहां तक? राइट, लेकिन ये किसके लिए था, डायमेट्रिकली अपोजिट। ऐसे बहुत सारे लेंथ एलिमेंट है पूरे कॉइल पे और हर एक एलिमेंट के लिए डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट है। तो अगर मुझे टोटल निकालना है, टोटल, तो टोटल के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेट करूंगा। गुड, राइट। तो साइन अल्फा आपको मिल जाएगा डायग्राम से। व्हाट इज साइन अल्फा? अपोजिट साइड विच इज ए अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज आर। तो ये a बाय आर यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे और dB का फॉर्मूला आपको बायोट सेवर्ट लॉ से पता है। व्हाट इज dB? म्यू 0 बाय 4 पाई आई डी एल, साइन थीटा तो 1 हो गया अपॉन आर स्क्वायर, और ये साइन अल्फा वापस से a बाय आर है, और डायग्राम से जो r है दिस इज हाइपोटेन्यूज, r इज आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, तो r इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2। तो dB आपके पास आया यहाँ पे म्यू 0 बाय 4 पाई आई डी एल, है ना,
ये dB था और आपने इसको dB को sin अल्फा से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो भूलना नहीं ये you have multiplied with sin alpha over here. ये sin अल्फा से मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, sin अल्फा से मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, तो ये आया है आइडियल a अपॉन r क्यूब, r क्यूब। तो ये है dB sin अल्फा, बट r क्यूब अभी अभी आपने ही बताया, आइडियल a, r is a raised to 2 plus x raised to 2 raised to half, a square plus x raised to half, तो क्यूब लूंगा तो यहाँ पे 3 आएगा, करेक्ट, राइट। तो यहाँ पर आपके पास आएगा नीचे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। क्लियर यहाँ तक? तो अभी मैं लिखने वाला हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला, क्योंकि अभी बहुत सारा मैंने आपको बता दिया, अभी आई डिड नॉट वांट टू टेल यू दिस। मैं तो ये बताने वाला था आपको दैट magnetic field at a point on the axis of a circular current carrying coil is directly given by mu 0 I a square upon 2a square plus x square raised to 3/2. This is the formula of magnetic field on the axis of a current carrying coil. ये जनरल फॉर्मूला है, नीचे पाई नहीं है, ओके, राइट। देन स्पेशल केसेस, स्पेशल केस, पहला तो आपको ये देखना है दैट लेट अस से फर्स्ट केस एट सेंटर। अगर मुझे सेंटर पे फाइंड करना है, मतलब ये जो x डिस्टेंस है, इस x डिस्टेंस को मैं क्या करूंगा, 0। I don't have a coil here. I don't know from where can I bring a coil now. This is a coil, एक्सिस पे हमको निकालना था डिस्टेंस, तो सेंटर से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस x है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ मुझे फाइंड करना है सेंटर ऑफ कॉइल पे, तो x की वैल्यू मैं 0 कर रहा हूं। नहीं समझ में आ रहा तो वापस बताता हूँ। ये कॉइल है, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे थे, ये डिस्टेंस x था यहाँ तक, मुझे सेंटर पे फाइंड करना है, तो मैं इस पॉइंट को ही यहाँ पे ले जा रहा हूँ, मतलब मैं x की वैल्यू 0 कर रहा हूँ। तो आप जब x की वैल्यू 0 करोगे तो b मिलेगा म्यू 0 I a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर रेज टू 3/2। ये और ये कैंसल, तो आपको मिलेगा म्यू 0 I a स्क्वायर अपॉन 2a क्यूब। उसमें ये कैंसल हो गया, तो आपको मिलेगा म्यू 0 I अपॉन 2a। मैंने बताया था सिर्फ पाई नहीं लिखना यहाँ पे, राइट, गुड, ओके। सो जागते रहो, जागना बहुत जरूरी है, राइट, ओके। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। अगर कॉइल के पास n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो मैं यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स you will have n into mu 0 I a square upon 2 a square plus x square raised to 3/2। अब ऐसा भी हो सकता है, ये मेरे पास कॉइल है और वो पॉइंट x is far away, that is second special case। So second special case, x is very very greater than a। So if x is very very greater than a square plus x square is roughly x square, तो आपको मिलेगा b इक्वल टू n म्यू 0 I a स्क्वायर अपॉन, ऊपर a स्क्वायर लिखना, उसको कैंसिल नहीं कर देना, 2x स्क्वायर रेज टू 3/2 मतलब 2x cube। So this is the magnetic field at a point x which is far away from the center of the coil. Good, clear, excellent। Next topic,
तो अब तक क्या किया हमने, बायोट सावर्ट लॉ डिफाइन किया, फिर क्या किया हमने हमने मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल देखा है. नाउ वी वांट टू सी व्हाट इज द फोर्स acting on a current carrying conductor in an external magnetic field. Force acting on a current carrying conductor, current carrying conductor in a magnetic field. Okay, so let's say we have magnetic field something like this. We have a wire, a conductor which is carrying current something like this. तो ये है I का डायरेक्शन या ये है DL का डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड इज हियर. एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट और DL बार, लेंथ एलिमेंट या फिर L, इज थीटा. Whenever you have a current carrying conductor in a magnetic field exerts a force on that conductor. जैसे जैसे you have a charge inside electric field exerts force which is given by Q into E. Force is Q, test charge into source electric field. वैसे यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए, force acting on a current carrying conductor due to magnetic field B is what? Do you remember what was the force on a moving charge? हमारे पास एक चार्ज है, हमारे पास एक चार्ज है जो रेस्ट पे है मैग्नेटिक फील्ड में. What is the force on that charge? What is force due to magnetic field on that charge? 0. Why? Force तब होगा. So you know force due to magnetic field is charge V bar cross P bar. So it is force acting on a moving charge inside a magnetic field is QVB sin theta, where theta is angle between velocity and magnetic field. अगर चार्ज यहाँ मूव हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो sin 90 दैट इज 1. पता होना चाहिए, नहीं तो साइक्लोट्रॉन कुछ नहीं समझेगा. You should know. Similarly, instead of a single moving charge, I have a wire which is carrying current. What is the magnetic force to the magnetic field? Simple है. कुछ लिया तो बिल भरते हैं क्या हम? If you buy something, you pay bill. तो bill. The force acting on a current carrying conductor is bill sin theta. तो ऐसे याद रखना, BIL sin theta. Where, और अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में लिखो. वेक्टर फॉर्म में लिखो इसको, FB बार इज इक्वल टू I L बार क्रॉस B बार. Okay, so this is how you are supposed to remember. You should know such basic things. I was expecting ये पता होगा आपको. ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं. We should, now you know and now you are not supposed to forget. Force acting on a moving charge inside a magnetic field is Q P bar cross B bar. Force acting on a current carrying conductor inside a magnetic field is I L bar cross B bar. Good. ये पता होगा तब जाके डायरेक्शन समझेंगे, नहीं तो कुछ नहीं समझेगा. मैं बता देता हूँ पहले, बिकॉज इट्स जस्ट अ बिगिनिंग पॉइंट एंड हाफ ऑफ योर स्लीपिंग. जागते रहो. If you need tea, just let me know. But you need to pay attention. Okay, then up.
there is something which is called as Lorentz force. Lorentz force is a simple thing. अगर हमारे पास एक चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है और मैग्नेटिक फील्ड में भी है, तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज इनसाइड मूविंग चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज मूव नहीं होगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जीरो हो जाएगा. सो टोटल फोर्स acting on a moving charge inside electric and magnetic field is called as Lorentz force. और हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होता है Q E बार और ये होता है Q V बार क्रॉस B बार. मतलब लिख सकते हो Q E बार प्लस V बार क्रॉस B बार. This is Lorentz force, right? Good. If the charge is not moving, then only Q E bar. If there is no external field but the charge is moving, external electric field, but it's magnetic field, so Q V bar across B bar. Good. Then, what we know is, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, पहले तो वो देख लेते हैं हम. We are supposed to find out what is force between two infinitely long current carrying wires या फिर current carrying parallel conductors. तो what you have is, हमारे पास दो infinitely long parallel current carrying conductors है. Okay, now they may have like currents or they may have unlike currents. Like currents मतलब currents are moving in the same direction. जैसे both are going from bottom to top, like currents, or they may be going one from top to bottom, other from bottom to top, unlike currents. सिर्फ डायरेक्शन करंट का अपोजिट होगा. अब what is the force between infinitely long wires? There is no external field. ये समझना जरूरी है. Let us give it some name. नामकरण कर देते हैं. Conductor 1, conductor 2. Current in conductor 1 is I1 and in conductor 2 is I2. जो फर्स्ट वायर है, फर्स्ट वायर में करंट है, तो फर्स्ट वायर में करंट है मतलब अभी अभी हमने सीखा था, थोड़ा टाइम पहले ही देखा था हमने, एनी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग स्पेस, द डायरेक्शन ऑफ व्हिच इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. ये करंट तो कर्ल्ड डायरेक्शन में, मतलब द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस first conductor, magnetic field due to current in the first conductor is given by, थोड़ा सा इसको मैं पास में लाता हूं, तो it is given by what? ऐसा डायरेक्शन होगा और यहां पे आने के बाद it is going inside the plane of ball या फिर कमिंग आउटसाइड, डिपेंड करता है. इमेजिन करना बहुत जरूरी है. ये पहला कंडक्टर है, ये दूसरा है. पहले कंडक्टर में जो करंट है अलोंग थंब, दूसरा कंडक्टर यहां पे है, तो कर्ल्ड फिंगर्स गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कंडक्टर एट द लोकेशन ऑफ सेकेंड, इट इज गोइंग इनसाइड, it is going inside. Magnetic field due to first conductor at the location of second is going inside, right? इसलिए यहाँ पे मैंने क्रॉस दिखाया है यहाँ पे. So cross means the magnetic field of first is going inside at the location of second. समझा यहाँ तक? Good. अगर ये समझा है तो let's say इन दोनों का डिस्टेंस जो है that is a. So I will
say the distance between two wires is a. This is a distance. Magnetic field is going inside here. Very good. तो सेकेंड कंडक्टर में करंट है क्या? है. सेकेंड कंडक्टर पहले कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में है क्या? है. तो सेकेंड कंडक्टर पे फोर्स लगेगा क्या? यस. एंड फोर्स आपने खुद ने बताया बिल साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन बी बार एंड एल बार. एल बार ऐसा ऊपर था सेकेंड कंडक्टर का, बी बार इनसाइड था 90 डिग्री, साइन 90 1, इसलिए मैंने लिखा नहीं वहां पे. करेक्ट. फोर्स किस पे लग रहा है? सेकेंड पे. फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1. मैग्नेटिक फील्ड किसका है? 1 का. करंट किसका? 2 का, क्योंकि 2 में करंट नहीं होता तो फोर्स नहीं लगता. इसलिए मैंने बोला यू हैव टू नो दिस. यहाँ पे बी जो था ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था. वी डोंट केयर कहां से है. आई किसका? जिस कंडक्टर में करंट है. एल किसका? जिस कंडक्टर में करंट है उसका लेंथ. तो हाउ मच लेंथ इज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड. हो सकता है मेरे पास 10 मीटर का वायर है, 2 ही मीटर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो मैं 2 मीटर लिखूंगा वहां पे. राइट. हो सकता है 10 का 10 मीटर इज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड. तो लेंथ किसका? लेंथ बी सेकेंड का. लेकिन हमने दोनों कंडक्टर का लेंथ को सेम बोल के रखा है, तो मैं यहां पे लिखूंगा ओनली एल. राइट. सिमिलरली ये सेकेंड कंडक्टर में भी करंट है विच इज गोइंग बॉटम टू टॉप अप. At the location of first conductor, the magnetic field of second conductor is coming outside. So magnetic field of second is coming outside at the location of 1. मतलब यहाँ पे भी फोर्स एक्ट होगा किस पे? फर्स्ट कंडक्टर पे ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंड. तो B2 I1 L. गुड. हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है? हमें ये बोला है what is the force between these two. Obviously forces have same magnitudes if they have same currents. Do you remember? याद तो होना ही चाहिए. Do you remember what is the magnetic field due to a long straight current at a distance a from the wire? Mu 0 4 pi 2 I by a. तो B1 क्या आएगा? Mu 0 by 4 pi 2 I1 by a. Similarly B2 क्या आएगा? Mu 0 by 4 pi 2 I2 by a. तो you will get force on 1 equal to B1 I2L था तो I2L लिख दिया. B1 आपने बताया mu 0 by 4 pi 2 I1 by A. तो क्या मिला है आपको? mu 0 by 4 pi 2 I1 I2 L by A. This is force between two conductors. या फिर बोल सकते हो आप force on 2 due to 1, ऐसा भी बोल सकते हो. Similarly force on 1 due to 2 में क्या आएगा? I1L. right. Force on 1 due to 2. Force on 1 due to 2 क्या था? I1L B2. B2 क्या आएगा? B2 आएगा 2 I2 mu 0 by 4 pi. Mu 0 by 4 pi 2 I2 by A. कुछ नहीं, B1 और B2 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. B1 पता होना चाहिए. What is the magnetic field at a distance A from a straight wire? Mu 0 by 4 pi 2 into current in the wire upon A.
B1 magnetic field due to first wire mu 0 by 4/2 into current in 1 was I1 by A. गुड, तो ये आपको मिल जाएगा F12 इक्वल टू म्यू 0 बाय 4/2 I1 I2 L बाय A। मतलब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखोगे तो आपको मिलेगा that force on 1 due to 2 equal to force on 2 due to 1 have same magnitudes। इसको मैं F बोल देता हूं। जस्ट बात रह गई अब डायरेक्शन की। What will be the direction of force 1 2 and 2 1? How do you find out direction of forces? How do you find out direction of forces? How do you find out direction in case of cross products? Yes, करंट I2 कहाँ है? ऊपर है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इनसाइड है। किसका मैग्नेटिक फील्ड? फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड। I2 यहाँ पे है, लेंथ यहाँ पे है, राइट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हो? स्क्रू रूल याद है क्या? ए बार बी बार, ए बार क्रॉस बी बार, ए बार बी बार, ए बार क्रॉस बी बार, पीछे आता है बी बार क्रॉस ए बार। वही करना है यहाँ पे। यहाँ पे यू हैव टू नो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है? अलोंग दिस फिंगर, अंदर। करंट इधर, तो फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ मिडल फिंगर हियर, तो फोर्स इज here. So this is force on 2 due to 1. Similarly, first case में magnetic field is coming out, current is going up. Magnetic field is, force due to magnetic field is here. F1 2. So when you have like currents, they attract each other. कैंसलेशन कैसे होगा? मुझे बताओ, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं? हाँ, तो यहाँ पे दो करंट्स अट्रैक्ट करते हैं। सिर्फ वहां पे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और लाइक अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे लाइक करंट्स की वजह से जो फोर्स होगा दैट विल अट्रैक्ट ईच अदर। और ये एक्सपेरिमेंट तो आप घर पे भी कर सकते हो। टेक टू वायर्स, उसको दोनों को सेल लगा दो, दोनों का प्लस माइनस प्रॉपर लगाना, करंट फ्लो होगा लाइक करंट, द वायर विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर एंड दे विल लाइक दिस, दे विल अट्रैक्ट, मतलब वायर ऐसा बेंड हो जाएगा, दिस वायर विल ट्राई टू गो टुवर्ड्स ईच अदर, राइट। और ये है लाइक करंट्स का। तो अनलाइक में क्या होगा? सब कुछ सेम अपार्ट फ्रॉम रिपल्शन। इफ current in the one wire is bottom to top and other is top to bottom, they repel each other। तो फोर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, म्यू 0 by 4/2 I1 I2 L by A। अभी ये है फोर्स, टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर, मतलब फोर्स ऑन द टोटल लेंथ। मुझे अगर पर यूनिट लेंथ 1 मीटर वायर पे कितना फोर्स फाइंड करना होगा, तो स्मॉल f इज कैपिटल F बाय L, और कैपिटल F ये F1 F2 दोनों कैपिटल F है, which was mu 0 by 4/2 I1 I2 L by A। सिर्फ ये L उठा के यहाँ डिनोमिनेटर में रखा, तो क्या बचेगा? mu 0 by 4/2 I1 I2 by A। This is force per unit length acting on conductor, right? Okay, so all right, so अब next topic, now it is interesting। the thing is, पहले ही यहां पे मैंने बोल दिया था, magnetic field at a point at a distance a from a current carrying wire is mu 0 I upon 2a, या फिर mu 0 upon 4/2 I by a। आया कैसे? तो
ये आया ऐसे, इफ यू रिमेंबर देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो आपको अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का, एक्सटेंडेड चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने में हेल्प करता था इन अ वेरी शॉर्ट वे। अगर स्पेरिकल कंडक्टर पे चार्ज है तो गॉसियन स्फीयर ड्रॉ कर लो, इमेजिनरी स्फीयर। वायर पे चार्ज है तो गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ कर लो, राइट। तो उसका एक एनालॉगस यहाँ पे भी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर्स लॉ, राइट। एम्पियर्स लॉ इज एग्जैक्टली द सेम। आपको याद होगा गॉस लॉ में आपने बोला था फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E bar dot ds bar through a closed surface S equal to charge enclosed upon epsilon 0। वहां पे चार्ज को एनक्लोज किया था, यहाँ पे करंट को एनक्लोज करना है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ वायर, लॉन्ग वायर which is carrying current I, and I want to find out what is magnetic field due to this current I at a point P which is at a distance A। तो यहाँ पे हमको करंट को एनक्लोज करना है। करंट को एनक्लोज करने के लिए वहां पे स्पीयर ड्रॉ करते थे, मतलब वहां पे 2 डायमेंशनल इंटीग्रेशन था, सरफेस इंटीग्रल था इन शॉर्ट। यहाँ पे लूप है, लूप मतलब यहाँ पे लीनियर इंटीग्रेशन है, लाइन इंटीग्रल बोलते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, हम इमेजिनरी लूप ड्रॉ करेंगे। जैसे वहां पे इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करते थे, यहाँ पे इमेजिनरी लूप ड्रॉ करेंगे। तो करंट को एनक्लोज कर दिया। तो जैसे वहां पे आपने सरफेस इंटीग्रल ई बार डॉट डी एस बार हुआ था, यहाँ पे आप लाइन इंटीग्रल बी बार डॉट डी एल बार, ई बार की जगह पे बी बार, डी एस बार की जगह पे डी एल बार इक्वल टू चार्ज एनक्लोज, यहाँ पे करंट एनक्लोज। सिर्फ वहां पे एप्सिलॉन 0 नीचे था, यहाँ पे म्यू 0 ऊपर आएगा। एग्जैक्टली सेम, ओके गुड। अब वो फॉर्मूला हम प्रूव कर लेते हैं जो मैंने पहले ही लिख के दिया था। आई हैड टू राइट इट डाउन बिकॉज फिर अदरवाइज वो फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स समझ में ही नहीं आता, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता ही नहीं होता, इसलिए मैंने पहले ही वहां पे बता दिया था। नाउ वी वांट टू फाइंड, लेट्स से हमें पी पॉइंट पे फाइंड करना है, गुड। जो हम लोग लूप ले रहे हैं ये इमेजिनरी लूप है, ये रियल लूप नहीं है। इस लूप को भी हम लोग डीएल 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 में हम लोग पार्ट्स करके रखेंगे, और यहाँ पे अगर मैं डीएल लेता हूं तो ये है डीएल। और मुझे पता है करंट along my thumb, magnetic field along curled finger। तो यहाँ पे ये dl और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब वापस से थीटा 0 है। तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू 0। करंट कितना है आई, फिर करंट एंगलोस क्यों लिखा, हो सकता था कि 10 वायर है, I1 I2 I3 I4 I5, तो फिर मैं क्या लिखता करंट एंगलोस को I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 अप टू I10। फिलहाल मैं एक ही ले रहा हूं जस्ट टू टेल यू, ओके गुड। तो ये आ गया आपका बी डी एल इक्वल टू म्यू 0 आई। मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, आई पे, करंट कांस्टेंट है, डीएल पे वो लेंथ भी कांस्टेंट है, अपॉन आर स्क्वायर पे पूरे सरकमफेरेंस पे। उसको क्या बोला था हमने, गॉसियन सरफेस, इसको बोलते हैं एम्पेरियन लूप। पूरे के पूरे एम्पेरियन लूप पे डिस्टेंस सेम है ए ए ए ए, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया पूरे लूप पे, मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज नहीं। तो मैं कांस्टेंट्स को इंटीग्रेशन के बाहर लिख ही सकता हूं, लिख सकते हैं ना, गुड ओके। देन what is dl plus dl plus dl plus dl for a ring loop, 2 pi a circumference। So this integration dl over complete loop is 2 pi a mu 0 i। तो मिल गया क्या, mu 0 i अपॉन 2 pi a। एग्जैक्टली यही फॉर्मूला था, सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया था। तो लुक एट द पावर ऑफ एम
Pierce law. This is example of magnetic field through a long, infinitely long straight wire. Okay. Then the same formula we can use to find out magnetic field at the axis of a solenoid. What is a solenoid? तो मैं सिर्फ नाम दे देता हूँ यहाँ पे, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि क्या पढ़ रहे हैं. तो हमको सोलेनॉइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. व्हाट इज अ सोलेनॉइड? सोलेनॉइड इज बेसिकली a rod, cylindrical rod with windings. So you have windings over here. Okay, that's a winding, something like this. Imagine kar lena that it is something like this. Good. Now we are circulating current from here and the current is coming out from here. Now since there is current, you know current always has generates magnetic field. तो along the axis हमको सोलेनॉइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. राइट हैंड थंब रूल. अगर कर्ल फिंगर्स करंट बताते हैं तो फिर थंब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है. राइट, गुड. तो यू विल हैव मैग्नेटिक फील्ड somewhere around in this direction. So you will have direction of magnetic field as this over here. तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. एक्सिस पे, हमको एक्सिस पे ही चाहिए. राइट, गुड. दो कैसे फाइंड करेंगे? व्हाट वी डू इज, हम बोलते हैं चलो ठीक है, लेट्स टेक अ लूप एंड एनक्लोज करंट, क्योंकि करंट को एनक्लोज करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे एक लूप लेते हैं और ये जो लूप है हमको एक्सिस पे फाइंड करना है. तो ये लूप को यहाँ रखना नीचे. वाई दिस इज मूविंग. ओके, लूप को सेंटर पे रखना. सम बुक्स हैव गिवन रॉन्ग, तो ये ऐसा आना चाहिए. तो यू हैव दिस लूप. तो लूप को मैं कुछ नाम दे देता हूं, नामकरण कर देते हैं इसका ए बी सी डी. लेंथ ऑफ द लूप हियर दिस इज एल. नाउ what is our task? Our task is to find out magnetic field inside the solenoid at its axis. तो हमको फाइंड करना है इंटीग्रल b bar dot dl bar इक्वल टू म्यू 0 I enclosed. ये सॉल्व करेंगे तो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा. जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ b bar dot dl bar को, तो चार पार्ट्स है. From A to B, B bar dot DL bar. From B to C, B bar dot DL bar. From C to D, B bar dot DL bar. And from D to A, B bar dot DL bar. A, B, B, C, C, D, D. B bar dot DL bar is B DL cos theta. Magnetic field is along the axis, right? But BC is perpendicular. Cos 90 is 0. मतलब BC side will not contribute. Similarly, DA will not contribute. तो ये भी contribute नहीं करेगा. और CD side जो है, it is outside the solenoid and away. और आपको पता होना चाहिए magnetic field due to solenoid, जो magnetic lines of forces होते हैं, they are crowded inside, but as you go away from solenoid, they are very very sparse. बहुत दूर होते हैं दूसरे से वो. मतलब it's same as electric field.
जितना दूर जाओगे उतना फील्ड लाइंस कम होते जाएंगे, राइट। तो ये साइड भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन, एक ही बचा। तो इन शॉर्ट व्हाट यू विल हैव इज you will have b bar dot dl bar contribution only from a b b d l, right। तो ये b इंटीग्रेशन dl a to b सेक्शन का लेंथ कितना लेके रखा है l, तो l, तो ये आ गया bl, दिस इज a बेसिकली, ये a है, तो ये आ गया bl। तो bl इक्वल टू म्यू जीरो चार्ज इन करंट एंक्लोज्ड, करंट एंक्लोज, हाउ मच इज द करंट एंक्लोज्ड, करंट आए जा रहा है यहां से, मैं मान लेता हूं देयर आर n टर्न्स, n टर्न्स इनसाइड दिस लूप, लूप में n नंबर ऑफ टर्न्स है ना, तो टोटल करंट विल बी n टाइम्स ऑफ i, क्योंकि सेम करंट n टाइम्स उस लूप में सर्कुलेट होगा, राइट। तो ये आ गया आपका b इक्वल टू, अच्छा हाँ, well by the way this a small thing here, डिपेंड करता है आप डिफाइन कैसे कर रहे हो इस स्मॉल n को, how we are defining it, this small n is number of turns per unit length, अगर आप स्मॉल n को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोल रहे हो, हाउ मेनी टर्न्स इन 1 मीटर, तो जब मैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा टोटल टर्न्स इन दैट लेंथ l। जिसको नहीं समझ में वापस बता रहा हूं, मेरे पास बहुत सारे टर्न्स है, मान लेते हैं ये 1 मीटर है, 1 मीटर में 2 टर्न्स है मान लेते हैं, तो 10 मीटर में कितने, 220, तो ये जो n है इसको मैं बोल रहा हूँ स्मॉल, ये जो 2 है इसको बोल रहा हूँ स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, है ना, पर मीटर, 1 मीटर में 2, टोटल मेरे पास 10 मीटर का वायर है तो मैं 2 इंटू 10 करूंगा, तो यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ, दिस n इज हाउ मेनी टाइम्स इन 1 मीटर इंटू लेंथ ऑफ लूप वाज l, तो n इंटू l। तो उसके बाद ये आप लिख सकते हो दिस एज बी एल म्यू जीरो एन एल आई, कैंसल कैंसल, तो b इज म्यू जीरो एन आई, क्लियर। n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कहां पे निकाला मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ये at the axis of solenoid, right, at the axis of solenoid। अब ये जो करंट था वो यहां से भी गया, फिर नीचे आया, फिर वापस ऐसा गया, फिर यहाँ पे आके लाइक दिस एंड अगेन लाइक दिस, मतलब एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जो ऊपर के सेक्शन से करंट है और जो नीचे की सेक्शन से करंट है उसका कॉम्बिनेशन है, सम है उसका, राइट। तो एट द सेंटर इज म्यू जीरो एन आई, मुझे अगर एट वन एंड देखना होगा तो मैग्नेटिक फील्ड, if I want to find magnetic field here at here near to one end, नहीं, तुम नहीं समझे, मैं ये बोल रहा हूं ऊपर जो करंट था नीचे जो करंट था, करंट ऊपर के सेक्शन में भी है नीचे के सेक्शन में भी है, राइट। हम मैग्नेटिक फील्ड का देख रहे हैं सेंटर में, कितना आ रहा है म्यू जीरो एन आई, तो ऊपर और नीचे दोनों करंट की वजह से आया होगा, तो मुझे अगर एट नियर टू द वन एंड देखना है तो half divided by 2, so if you want to find out what is magnetic field at one end of solenoid, that is mu 0 n I by 2, right। अब ये जो सोलेनॉइड था, मैं ऐसा करूंगा, सोलेनॉइड को लूंगा, डोनट शेप दे दूंगा मैं, टोरॉइड बोलते हैं उसको। सो व्हाट वी विल डू इज, नेक्स्ट थिंग इज
toroid. I will take a solenoid, bend it in the form of a donut, and still you have windings here, and current is flowing through this. और फिर मैं एक्सिस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं, दिस एक्सिस, ये एक्सिस है, तो दिस इज नथिंग बट द सेम थिंग. B axis is mu 0 and I only, where n is total number of turns per unit length, but length is 2 pi r, क्योंकि ये जो एक्सिस है इसका एवरेज रेडियस में लेता हूं r, तो ये आएगा म्यू 0 n अपॉन 2 पाई r इंटू आई. मतलब टोरॉइड और सोलेनोइड दोनों के एक्सिस पे फॉर्मूला सेम ही है. द डिफरेंस इज ओनली टोटल लेंथ. इन केस ऑफ टोरॉइड बिकम्स 2 pi r because that is circumference of that axis. क्लियर? पक्का क्लियर यहां तक? Okay, so the last thing that is remaining from theory part of this chapter is moving coil galvanometer, then how to convert it into ammeter and voltmeter, and what is cyclotron. Okay, so that will mark the end of magnetic effect of electric current. That theory we will be taking in the next session.